Good afternoon, students. As I told you in first video, today we are going to learn a new lesson of English. That is lesson number 32, the noble stag. Okay. So in last video, I have just read the lesson. Okay. So in this video, I will explain you this lesson. So see, the title of the lesson is the noble stag. Noble stag. Noble means honest. Okay. So in this lesson we are going to see the interesting story about one honest stag. Okay, stag means what? The male of deer. डियर यू नो ना, डियर डियर तो सबको पता है। तो उसका जो डियर में जो मेल रहते हैं, मस्क्यूलाइन जेंडर रहता है, वो उसको बोलते हैं स्टैग। ओके, so in this lesson we will see the story of one noble stag. So can we start the story? Okay, so see, as we all know, King Brahmadatta of Benares was extremely fond of hunting. Means Brahmadatta is the name of the king who lived in Benares. Okay, and this king means Brahmadatta was extremely fond of hunting. Hunting means शिकार करना. So he likes to hunt. He liked to hunt the animals. Okay, luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Means wherever in which kingdom the Brahmadatta lived, so outside of this city there have a huge forest. Outskirts means outside area, outer part of the city. Outskirts means outer part of the city, means the outer part of the city there was a huge forest, and in that forest there are so many deers are there. Okay, among them there was a mighty stag. So among that deer there have one a mighty stag. Mighty means strong, powerful. Okay, so in that forest there was deer also. So many deers were found, and also one mighty stag is one powerful strong stag is also stag was also there. Okay, see the next. One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. Courtiers means those who, a person who वर्क इन दैट किंगडम। ओके, जो कर्टियस यानी जो सेवक रहते हैं, उनके राज दरबार में काम करने वाले जो सेवक रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं, उनको कर्टियस बोलते हैं। सो वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विथ हिज कर्टियस। मीन्स एज आई टोल्ड यू, द किंग ब्रह्मदत्त वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग। मी ही लव्ड हंटिंग। उनको हंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। ओके, सो वन डे ही डिसाइडेड दैट वी ऑल्स विल गो टू हंटिंग। ओके, so one day the king had gone hunting with his courtiers. Okay, he told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. Okay, means what? See, when he left his kingdom, that times he told to the or courtiers which are he told to his or courtiers that if you allow even a single deer to escape, उन्होंने एक बताया उनके कर्टियोस को, इफ़ यू अलाउ इवन अ सिंगल डियर टू एस्केप आई विल पनिश यू सेवेरली। मीन्स वेरी स्ट्रिक्टली, very harshly. Severely means harshly. So if you accept any single deer, even a single deer, then I will punish you very harshly. मतलब अगर आपने एक भी एस्केप यानी छोड़ना, अगर एक भी डियर हम आपके हाथ में से छूट गया तो इसकी मैं आपको बहुत हार्शली पनिशमेंट दूंगा, ऐसे उन्होंने अपने कर्टियस को बताया। So the courtiers form a tight circle from which no deer could escape. Okay, means outer part of the city,
went there means the king Brahmadatta and the courteous, his courteous. So that times he form a tight circle around that forest. उस फॉरेस्ट के बाजू में उन्होंने एक राउंड सर्कल टाइटली लगा दिया कि ताकि कोई डियर उसमें से भाग के ना जाए. ओके. Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes to make them run. Okay, means when they went there, that time they formed the tight circle around that forest. And the forest have so much, you know that in the forest there have so much trees are there. Okay, so they can't see the deer. So for to see the deers, they found a one idea. What they beat on the floor, they began to beat their sticks on the ground. बीट देयर स्टिक्स यानी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, उनके हाथ में जो स्टिक्स थी वो ज़ोर ज़ोर से पटकने लगे ग्राउंड पे. क्यों पटकने लगे आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि वो पटकने से, वो आवाज़ आने से वो डियर घबरा जाएंगे और फिर वो जंगल के अंदर से बाहर भाग जाएंगे. The only way out of their circle was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrows. Okay, means these courtiers made a tight circle, form a tight circle around this forest, and one place is there where there is no courtiers. But so here have no words. See, the only way of the circle was through a small clearing. Clearing means एक ऐसी जगह थी जिधर कोई भी झाड़ी नहीं थी या कोई भी ट्री नहीं था जिधर से डियर भाग सकते थे. लेकिन उधर क्या था देखो, वेयर द किंग स्टूड रेडी विथ हिज bow and arrows. So in that place the king was there with his बो एंड एरोस, धनुष लेके वो किंग ब्रह्मदत्त खड़े थे उस जगह पे. The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of a thicket. Thicket means very much trees are there, very much bushes are there, means वो झाड़ी में से वो स्टैग बाहर आ गया. तो वो जो कर्टियर्स थे जो उनकी स्टिक्स पटक रहे थे ज़मीन पे, ग्राउंड पे, वो एकदम से सडनली यानी एकदम से अचानक से वो शाउट करने लगे. दे शाउटेड. वाई दे शाउटेड? बिकॉज अ स्टैग लिफ्ट आउट ऑफ ए थिकेट. उस बुशेस में से, उस जंगल में से एक स्टैग बाहर आ गया. द स्टैग सॉ द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे, सो ही लुक द किंग स्ट्रेट इन द आई एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम. डैश मीन्स के तरफ. डैश यानी के. उन्होंने क्या किया, वो स्टैग ने क्या किया, जिधर किंग खड़े थे, किंग ब्रह्मदत्त खड़े थे, तो उधर उन्होंने उनके आँखों में देखा. एंड स्ट्रेट इन आई मीन्स आँखों में, स्ट्रेट आँखों में देख के स्ट्रेट वो उनकी तरफ आगे बढ़ गए. वो स्टैग आगे बढ़ गया. द किंग वॉज टेकन अबैक एंड शॉट एन एरो टूवर्ड्स द स्टैग हरीडली. King was also shocked. That time the king was also shocked. Aback means उनको भी शॉक लग गया कि अरे ये स्टैग तो मेरी तरफ ही आ रहा है. इसीलिए वो थोड़े से सरप्राइज हो गए या डर गए थोड़े से. He shot an arrow towards the stag hurriedly. Of course it missed the mark, but the stag rolled over. Means उनको पता चल गया कि ये स्टैग मेरी तरफ ही आ रहा है, मेरे आँखों में आंखें डाल के देख रहा है. तो उन्होंने फटक से अपना धनुष बाण निकाला और उसकी तरफ एरो निशाना लगा के शॉट किया, एरो शॉट किया. तभी क्या क्या हो गया देखो, द स्टैग रोल्ड ओवर. उधर गिर गया स्टैग. अभी उस स्टैग को लगा था क्या? नहीं लगा था. इट मिस द मार्क. नहीं लगा था स्टैग को, वो उधर ही रोल्ड ओवर मतलब ज़मीन पे गिर गया वो स्टैग. नाउ देर इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग. इट हैज़ एक्सीलेंट इंस्टिंक्ट्स एंड इज एक्सट्रीमली गुड और dodging arrows, whether shot at from the back, front or even the top. Means this is a one universal truth. We can see it is a universal truth also that the stag has excellent
excellent instincts that extremely good at dodging arrows means arrow जो आते हैं धनुष्यबाण से जो बाण निकलते हैं वो उनको हिलाते रहना या उन उनसे बचना उनको अच्छी तरीके से आता है वेदर द शॉट एट फ्रॉम द बैक फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑल्सो इवन द टॉप मतलब वो धनुष बाण का जो बाण है वो किधर से भी आए एरो उनको वो उसको क्या बोल रहे हैं अब बोल सकते हैं हम लोग कि उस वो बाण ना लगे या वो एरो ना लगे अपने शरीर पे इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टैग को स्किल होता है ओके उसको चुकाने का. Next one. If an arrow is aimed at its belly, it pretends the roll over and the jump up and runs once the danger has passed. अभी ये स्टैक क्या करते हैं? If an arrow is aimed at its belly, belly means stomach, पेट. सो जब भी एरो का निशाना उनके पेट पे होता है तभी वो क्या करते हैं नीचे रोल्ड ओवर हो जाते हैं मतलब रोल्ड ओवर होना यानी पहले ही मैंने बता दिया कि ग्राउंड पे गिरना तो वो रोल्ड ओवर होते हैं और फिर जैसे उनको लगता है कि अभी अच्छी सिचुएशन है अभी हमें कुछ हो नहीं सकता डेंजर सिचुएशन नहीं है तभी वो स्टैग जंप अप होते हैं यानी जंप करते हैं. So when the stag rolled over, the king thought that its arrow had found its marks. He lowered his bow and began to walk towards the stag. Means when the king shoot uh, shot his arrow, and when the stag rolled over on that ground, that time the king thought that my mark is very good. Means I am the sorry. आई एम द मार्क्समैन आई एम द एक्सलेंट मार्क्समैन सो मेरा निशाना अभी लग गया है और स्टैग को लग गया है और इसीलिए स्टैग जख्मी हो गया है गिर गया ऐसा किंग ब्रह्मदत्त को लगा. सो ही लोवर्ड हिज बो एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैग तो उनको ऐसा लगा कि अभी ये जख्मी हो गया है ये गिर गया अभी ये कुछ नहीं कर सकता है तो इसलिए उन्होंने अपना बो जो है धनुष जो है वो नीचे कर दिया लोवर्ड मीन्स नीचे कर दिया एंड ही बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैग और वो स्टैग की तरफ चलने लगे. बट द स्टैग सडनली जंप अप एंड शॉट पास द मैन. When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. See, when the king walked towards the stag, suddenly the stag jumped up and shot past the man. So all the courtiers which were standing around that forest, so they saw that all things means for a for a second that courtiers also thought that yes the king the stag has died and the arrow which shot by the king was excellent ओके एंड राइट मार्क्स. जो कर्टियस थे उनको भी ऐसा लगा था कि जो निशाना लगाया है किंग ने वो लग गया है और इसीलिए वो स्टैग गिर गया है तो एक सेकेंड के लिए उनको भी ऐसा लगा कि वो जख्मी हो गया लेकिन जैसे ही किंग आगे बढ़ते गए उस स्टैग की तरफ वैसे स्टैग ने क्या किया जंप किया. तभी कर्टियस ने देखा कि सब कर्टियस ने देखा कि क्या है दैट किंग हैड बीन मिस्टेकन किंग का निशाना लगा ही नहीं he had been mistaken so they started to laugh. Now why they started to laugh because when they went there that times the king told strictly to the courtiers if you allow even a single deer to escape I will punish you severely. जब भी वो निकल रहे थे तभी उन्होंने बताया था किंग ने अपने कर्टियर्स पे आपने एक भी डियर को जाने दिया तो मैं आपको बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दूंगा और इधर उल्टा ही हो गया कि एक स्टैग किंग की वजह से ही छूट गया. ओके सो इसीलिए वो जो कर्टियर्स थे वो दे स्टार्टेड टू laugh. Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunts of his men means the courtiers which taunts to the
king. Taunts means ताने मारना. Okay, so ये ताने मार रहे थे, हंस रहे, तो ये bear नहीं कर सकते थे king, उनको भी सहन नहीं हो रहा था. So he grabbed his sword and set off the forest in order to catch the stag. तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में क्या किया, उनकी जो तलवार थी, स्वॉर्ड यानी तलवार, तो वो तलवार निकाली और वो फॉरेस्ट में he grabbed his sword and set off it in the forest in order to catch the stag, और स्टैग को कैच करने के लिए निकल पड़े. he chased the stag for quite a while and covered a long distance. मीन्स वो पीछे पीछे गए, चेस करना यानी पीछे पीछे जाना. so जिधर जिधर स्टैग जा रहा था उसके पीछे पीछे ये जो किंग है, किंग ब्रह्मदत्ता, वो जा रहे थे. आप इधर देख सकते हो. सी हियर इज द फॉरेस्ट इन दैट पिक्चर. यू कैन सी दैट हियर इज द फॉरेस्ट एंड ऑल courtiers which is around the forest, and here you can see the stag, okay, and king also. So see the next. The stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with slime. Okay, now see here. अभी ये जो किंग है वो पीछे पीछे जा रहे थे, भाग रहे थे स्टैग के. तो स्टैग ऐसी एक जगह पे आ गया जिधर एक ग्राउंड पे होल था, और उस होल में क्या था, रोटिंग ट्रीज यानी जो पेड़ के गीले पत्ते वगैरह होते, छोटे छोटे पेड़्स होते, वो सब डाले गए थे. फिल्ड विथ स्लाइम, स्लाइम यानी कचरा था, वो सब गीला, थोड़ा पानी डाल के जो कचरा बनाया जाता है वो कचरा था उस खड्डे में. फ्रॉम अ डिस्टेंस ही कुड स्मेल द डर्टी वाटर एंड सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट, बट द किंग कुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल राइट इनटू इट. सी, फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर एंड सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट. अभी जो पिट था, पिट यानी जो होल था, जो खड्डा था, उस खड्डे में बहुत सारे कचरा था, या तो जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के जो गीले पत्ते होते हैं, फिर उसमें पानी डाल के जो उसको अलग सा ही एक डर्टी स्मेल आता है, तो वो डर्टी स्मेल आने लगा. तब भी स्टैग को पता चल गया कि ये एक पीट है और इसको, सो ही वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट, इसमें से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो भागूंगा तो इसमें मैं गिर जाऊंगा, ये पता था स्टैग को. सो बट द किंग कुड नॉट सेंस द पीट एंड फेल राइट इनटू इट. लेकिन ये जो किंग थे ब्रह्मदत्त, ये चेस कर रहे थे, yes na, he was chasing to the stag, so he has one thought only, so I want to die, I want to kill this stag. एक ही थॉट था किंग के मन में. तो उनको पता नहीं चला कि पीठ है, उनको स्मेल भी नहीं आई, डर्टी स्मेल, और वो खाली उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे. और तब भी the king could not have the sense, and therefore he fell right into it, right into that pit. After a while, the stag realized that he was not being followed any longer. He understood that the king had perhaps fallen into the pit. Means the stag knows that the king followed me, so he run and after that when he look back to his, that times he realized that he was not being followed any longer. मीन्स मेरे पीछे किंग दिख ही नहीं रहा है. उन्होंने जो स्टैग है वो पीछे देखा तो किंग आ ही नहीं रहे, बहुत डिस्टेंस हो गया कि ये किंग दिखाई नहीं दे रहे. सो द स्टैग अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट. स्टैग को पता चल गया है कि परहैप्स द किंग फॉलन इनटू द पिट, शायद ये किंग जो है वो उस पिट में, जो होल बनाया गया था, उस होल में गिर गए होंगे. So the stag went back to the pit and saw the king struggling for his life because this pit was too deep. Okay, जो होल था वो बहुत डीप था, तो उसमें से निकल नहीं सकते थे किंग. सो द स्टैग वेंट बैक, वो फिर से पीछे आ गया स्टैग, और उसने देखा कि उस पीट में जो किंग है, किंग ब्रह्मदत्ता, वो गिर गए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो ऊपर आए, अपनी जान बचाने के लिए
स्ट्रगल कर रहे हैं. द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग. ही डिसाइडेड टू सेव द किंग्स लाइफ इवन दो द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम. लेकिन ये स्टैग है, मैंने पहले ही बता दिया, इट इज़ अ नोबल स्टैग. ही इज़ अ नोबल स्टैग. ये बहुत ऑनेस्ट स्टैग है. तो जैसे ही उस स्टैग ने देखा कि उस पेट में किंग गिर गया है, गए हैं और वो अपने आप की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी स्टैग ने सोच लिया कि मैं इनकी जान बचाऊंगा. इनकी जान बचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए. इवन दो उसको ये पता था उस स्टैग को कि ये किंग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं, टू किल मी, मुझे किल करने के लिए, मुझे मारने के लिए ये फॉलो कर रहे हैं, फिर भी स्टैग फेल्ड वेरी सॉरी फॉर हिम. बहुत दुख लग रहा था स्टैग को किंग के लिए कि वो उस पेट में गिर गए और वो निकल नहीं सकते हैं, वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे. ये सब देख के स्टैग को बहुत दुख हो गया. सो द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर अ while longer. He then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. The king caught hold of his neck and the stag climbed out into the level ground and carried the king to safety. अभी स्टैग ने क्या आइडिया लड़ाया देखो. फर्स्ट द स्टैग टोल्ड टू द किंग दैट नॉट टू वरी. ये जो मानसिक आधार देना बोलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो स्टैग ने पहले वही किया. स्टैग ने पहले किंग को बताया कि डोंट वरी, आई विल सेव यू. आप घबराओ मत, मैं आपको आपकी जान बचाऊंगा. टू बी ब्रेव, धाड़सी बनो. फॉर अ वाइल लॉन्गर, थोड़े समय के लिए धाड़सी बनो, ऐसा बोला उन्होंने. He then caught a huge rock. First, the stag caught a huge rock with his hind legs, four legs and hind legs. I told you that four legs means आगे वाले दो पैर और hind legs means पीछे वाले दो पैर. Okay, so he caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. मीन्स उन्होंने क्या उसने क्या किया स्टैग ने कि एक बड़ा सा पत्थर, रॉक, बड़ा सा पत्थर उसके पीछे वाले दो पैर में रख दिया और खुद को उस पीठ में लॉड कर दिया, यानी वो खुद वो पीठ के अंदर गया, पीठ के अंदर गया. ओके, सो द किंग caught hold of his neck and the stag climbed out on the level ground and carried the king to safety. फिर किंग ने उनकी नेक, गर्दन को पकड़ लिया, होल्ड किया और फिर स्टैग क्लाइम करके यानी चढ़ के ऊपर आ गए फिर से. ओके, और ऐसे किंग ने लाइक दैट वे द किंग सेव द स्टैग सेव द किंग्स लाइफ. ओके, सेफली. The king thanked the noble stag again and again and asked him to return with him to Benares, where he could have anything and everything he wanted. Means the king thanked to the noble stag. देखो जो king उस स्टैग को मारने के लिए चले थे, उस स्टैग ने ही इस किंग की जान बचाई और इसीलिए किंग ने स्टैग को थैंक्स बोला. और वो बोल रहे थे कि आप मेरे साथ बनारस में चलो, आपको जो चाहिएगा, जितना चाहिएगा मैं आपको दे दूंगा. सी ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड. But the stag did not want anything in return for his help. He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. Then the noble stag disappeared into the forest. King Brahmadatta then vowed not to hunt or hurt any animals. स्टैग ने उनके बदले में, उस हेल्प के बदले में यही बताया कि आप अच्छे से राज करो बट किसी एनिमल्स को धोखा मत दो, किसी एनिमल्स की जान मत लो. ओके, ही रिक्वेस्टेड द किंग टू रूल वाइसली एंड वेल बट बी काइंड टू एनिमल्स. काइंड के साथ दयालु, काइंडली रहो, सब एनिमल्स के साथ काइंडली रहो. देन द नोबल स्टैग डिसअपीयर इनटू द फॉरेस्ट, और वो अपने फॉरेस्ट में चला गया. किंग ब्रह्मदत्त देन वोड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल्स एंड दैट टाइम्स द किंग रियलाइज दैट yes, I should not hurt to the animals.
I should not hunt to the animals. Okay, so the king Brahmadatta decided that I will not hunt or hurt any animals. Okay, so very interesting and nice story it is. So you have to also remember that in our day to day life we should not hurt to any animals, we should not kill to any animals because the animals also has feelings. ओके, एनिमल्स को भी फीलिंग्स होते हैं और इसीलिए हमें एनिमल्स की किसी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको इंज्योर नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए. ओके, सो थैंक यू.